कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे हम हर एक विषय पे जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। फेलियर ऑफ रिवॉल्ट। Although this revolt was a big event, the history of India, it had every little chance of success against an organized and powerful enemy. It was surprised within a years of the outbreak. Various cases lead to the failure of revolt of 1857. There is of various cases. There was no unity of purpose among their rebels. The Sepoys of the Bengal wanted to revive their ancient glories of Mughal where the Nana Sahib and Tatya Tope and tried to re-establish their Maratha power. Rani Lakshmi Bai fought again Jhansi, and which she had lost as a result of British policy of doctrine of lapse. Secondly, this is a rising was not of spirit, its remain is a confident to the north and center India. Even in the north, Kashmir, Punjab, Sindh and Rajputana keep away from the rebels. The British is a managed to be get the loyalty of Madras and Mumbai regiment and the Sikh state. Afghans and Gorkhas also supported the British. There is an important point here. Afghan and Gorkhas also support the British, and many Indian rulers refused to help the rebels. And some were opening hostile to be them and the helped the British in suppressing the revolt. The middle and upper classes and the modern education India as also did not support the revolt. And thirdly, their leadership of the movement was weak. There is thirdly is the most important. The leadership of the movement was weak. Indian leaders is a lack to the organization and planning. That is important. Indian leaders lacked organization and planning. The rebel leaders were not to be matched to their British soldier. Most of its leaders thought out their own interest, and they were motivated by narrow personal gain. The fought to be elaborate only their own territories. No national leaders is must to be coordinate the movements and give it a purpose and their direction. The Lakshmi Bai, Tata Tops and Nana Sahib were encourages, but there is not good of military generals. With the escape of Nana Sahib and their death of the Bahadur Shah Jafar come the end of the Peshawaships and their Mughal rules. The rebels were short of weapon and finance. The rebels were short of weapon and finance, and whatever few weapons existed were the old and outdated. They were no match to be sophisticated and the modern weapons of the British. The rebels were also poorly organized. The uprising in a different part of the country were uncoordinated. Of the suppressing we have in their uncontrolled manner. On the other hand, the telegraphic system and postal communication helped the British to speed up their operation. The English masters of the sea enabled them to get a timely help from the England and crash the revolt ruthlessly. That is important. सफलता इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है। सफलता के लिए बहुत ही मेहनत की आवश्यकता है। कुछ व्यक्ति सफलता पाना भी चाहते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारे आड़े आ जाते हैं। देखा जाए जो हमारा पॉइंट आया है विद्रोह की असफलता, यानी 1857 की जो क्रांति हुई उसकी असफलता के कारण क्या था? क्या हमारे लोगों में कमी थी? क्या हमारे में एकता नहीं थी? या ये आंदोलन जो थी एक समय में स्टार्ट नहीं हुई? कहते कई बात है जिसके बारे में हम यहाँ विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानने को हर एक बात को जानेंगे जो अभी तक अछूता था, जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं थी, जो विद्रोह की असफलता का कारण बना। कहते हैं घर का वेदी लंका ढाए। तो ये कहावत 1857 क्रांति में पुण्य सत्य हुई क्योंकि जो रानी लक्ष्मीबाई के सहयोगी था या जो क्रांतिकारी थे उनके सहयोगी थे, उनमें ऐसे व्यक्ति थे जो सारी की सारी बातें जो थी, सारी गतिविधियाँ
अंग्रेज़ों तक जो है बहुत आसानी से पहुंचा देते थे, जिसके कारण ये रिवॉल्ट जो थी, जो विद्रोह थी, अंग्रेज़ों ने बहुत ही आसानी से कुचल दिया। दूसरा कारण था पंजाब के सिपाही। पंजाब के सिपाही अपने अंग्रेज़ों के लिए उन्होंने बेखूबी कड़ी मेहनत से जो है इस विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण अपना स्थान दिया। तो कहते हैं ये क्रांति उसी समय सफल हो जाती, लेकिन कुछ कमियां थी जो इस क्रांति को ले डूबा, और इससे जो है कई इम्पोर्टेंट नेता जो थे अपने प्राण की आहुति दे दिए। फिर भी जो है हमारा भारत उस समय आज़ाद नहीं हुआ। लेकिन कहा जाए तो जो आज़ादी की नींव 1857 क्रांति में पड़ी, उसका जो है कुछ समय के पश्चात जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तब उसकी सफलता पुण्य प्राप्त हुई। तो बात यहाँ करें विद्रोह की असफलता की, तो कहते हैं विद्रोह की असफलता, यद्यपि यह विद्रोह भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना रही। यद्यपि एक संगठित और शक्तिशाली शत्रु के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के लिए उनके पास बहुत कम अवसर थे, क्योंकि कहते हैं जब इनमी यानी शत्रु जो है स्ट्रॉन्ग हो और उसके लिए स्ट्रॉन्ग हथियार की आवश्यकता होती है, लेकिन भारत के पास वही पुराने तकनीक थे, वही पुराने सोच विचार थे, और इतने शक्तिशाली जो है शत्रु को हराना संभव नहीं था। लेकिन फिर भी शत्रु ने ये मान लिया कि इनमें बहुत दम था, और उनको जो है दबाने में उन्होंने बहुत परिश्रम करना पड़ा। यानी उनको जो देखा जाए तो उनको ये बात मानने को मजबूर कर दिया कि इनमें बहुत दम है, अगर इनको अभी शांत ना किया जाए तो कुछ समय के पश्चात जो है ऐसी क्रांति उठेगी और अंग्रेज़ों को ले डूबेगी। इसलिए अंग्रेज़ों ने बहुत सी चीज़ों पर जो है बदलाव किया जो लोगों के हित में था। विद्रोह के शुरू होने के 1 वर्ष के भीतर ही इसे दबा दिया गया, क्योंकि ये युद्ध अधिक दिन तक नहीं चला, और इसका सबसे महत्वपूर्ण बात वही थी कि इस विद्रोह के बारे में उनको बहुत ही आसानी से सूचना प्राप्त हो जाता था। 1857 के विद्रोह की असफलता के अनेक कारण थे, जैसे बागियों के उद्देश्य में एक रूपता नहीं थी। यानी बागी जो हुए, जो क्रांतिकारी हुए, उनके उद्देश्य एक जैसे नहीं थे। वो सब ये इसलिए लड़ाई नहीं कर रहे थे कि हमें भारत को आज़ाद करना है। कहीं पे वो चर्बी वाले कारतूस के लिए लड़ रहे थे, तो कहीं अपने बच्चे को राजशाही दिलाने के लिए लड़ रहे थे, तो कहीं अपने राजा के लिए लड़ा जा रहा था, तो कहीं अपनी जॉब लॉस हो जाने के कारण लड़ रहे थे। यानी सभी क्रांतिकारी में एक उद्देश्य नहीं था, सबकी अपनी अपनी उद्देश्य थी, अपना अपना पर्पस था, जिसके कारण ये क्रांति जो हुई बहुत आसानी से दब गई। बंगाल के सैनिक मुगलों की खोई शान शौकत को पुनः जीवित करना चाहते थे। यानी देखा जाए तो बंगाल के सैनिक मुगलों की खोई हुई शान शौकत आपस करना चाहते थे, इसलिए इस क्रांति में वो कूदे। जबकि नाना साहेब और तात्या टोपे ने मराठा शक्ति को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया। सबकी अपनी अपनी अलग अलग बातें थी। यहाँ तक कि रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के पुण्य प्राप्त करने की लड़ाई को, जो कि उसे अधिग्रहण के सिद्धांतों की यानी अंग्रेजी नीति के परिणाम स्वरूप खो दी थी। यानी उसके पति मर जाने के कारण उसके जो गोद लिए बच्चों को राजशाही नहीं मिल सकती थी, और उसने अपनी जो है राज्य खो बैठा। यानी अधिग्रहण के सिद्धांत के अनुसार अंग्रेजों ने अधिग्रहण इसलिए एक रूल पास किया हुआ था, जिसमें अगर राजा के कोई संतान नहीं होता है अपना, तो उसको जो है गोद लिए बच्चे को कोई भी राज्य नहीं मिल सकता। इसके अंतर्गत जो है रानी लक्ष्मीबाई ने अपने झांसी को जो है खो दिया। इसके लिए उन्होंने इस युद्ध में लड़ा। दूसरा, यह विद्रोह अधिक क्षेत्र तक फैला हुआ नहीं था। यानी यह विद्रोह हर एक क्षेत्र में फैला हुआ नहीं था। अगर आप मैप में भी देखे होंगे तो ये देखा जाए तो उत्तर प्रदेश से कुछ ही क्षेत्रों में फैला, इवन बंगाल तक आया। तो समझ सकते हो पूरे देश में यह विद्रोह नहीं फैला, जिसके कारण इसको आसानी से दबाया जा सका, बल्कि उत्तर और मध्य भारत तक ही सीमित रहा, जो कि इसकी असफलता का मुख्य कारण बना। यहाँ तक कि उत्तर में कश्मीर, पंजाब, सिंध और राजपूताना इस विद्रोह से दूर रहे। कहते हैं कश्मीर देखिए, पंजाब देखिए, सिंध और राजपूताना, इन सारे के सारे जो थे 1857 की क्रांति से बहुत दूर थे। अंग्रेज मद्रास के मुंबई के रेजिमेंटों और सिख प्रदेशों को निष्ठा प्राप्त करने में सफल रहे, क्योंकि उन्होंने सिखों को अपने अंडर कर लिया, और इसके रेजिमेंटों को जो है उन्होंने इस विद्रोह को कुचलने के लिए भेजा। अफगानों और गोरखाओं में भी अंग्रेज़ों का समर्थन किया। यानी अफगानों ने भी और गोरखाओं ने भी जो है अंग्रेज़ों का पुण्य समर्थन किया, जिसके कारण 1857 क्रांति बहुत आसानी से दब गई। अनेकों भारतीयों ने विद्रोह की
सहायता करने के इनकार कर दिया। यानी बहुत से शासक जो थे इस विद्रोह में नहीं सम्मिलित हुए, जिसके कारण सबसे बड़ा कारण बना कि यह विद्रोह जो है बहुत आसानी से कुचल दिया गया। मध्य और उच्च वर्गों और आधुनिक शिक्षित भारतीयों ने भी विद्रोह का समर्थन नहीं किया। यानी मध्य और उच्च वर्ग के लोगों ने 1857 क्रांति का कोई भी समर्थन नहीं किया। इवन कि जो भारतीय शिक्षित थे उन्होंने इस विद्रोह का बिल्कुल ही समर्थन नहीं किया। और तीसरे बात पे हम ध्यान देते हैं, इस आंदोलन का नेतृत्व बहुत कमज़ोर था। यानी नेतृत्व भी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, बहुत कमज़ोर था। और भारतीय नेताओं में संगठन और संयोजन की योग्यता नहीं थी, वो कॉम्बिनेशन नहीं कर सके। और विद्रोह नेताओं के जो है अंग्रेजी सैनिकों से कोई तुलना नहीं थी, क्योंकि विद्रोही नेताओं देखा जाए तो उनके पास वो सारे कुछ नहीं था जो अंग्रेज सेना के पास थी। अधिकांश नेताओं के विचार केवल उनके निजी हितों तक ही सीमित थी। जितने भी क्रांतिकारी में पार्टिसिपेट किए सबका अपना निजी हित ही थी, और इनका उद्देश्य केवल गहन निजी लाभ ही था। सबका अपना लाभ था, जिसके कारण ये 1857 की क्रांति जो था सफल नहीं हुआ। उन्होंने केवल अपने निजी प्रदेश क्षेत्रों को संविधानता के लिए लड़ाई लड़ी, और कोई भी ऐसा राष्ट्रीय नेता उभर कर नहीं आया जो इस आंदोलन का समन्वय करके इसे कोई उद्देश्य और दिशा प्रदान कर पाता। इवन कि देखा जाए लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे और नाना साहब बहुत साहसी थे, परंतु वो अच्छे सैन्य जनरल नहीं थे। यानी उनसे जो है पूरा सैनिक कंट्रोल नहीं हो सका। नाना साहब के बच निकलने और बहादुर शाह जफर की मृत्यु से पेशवागिरी और मुगल शासन का अंत हो गया, और विद्रोहियों के पास शस्त्रों और धन का भी अभाव था। जो क्रांतिकारी थे उनके पास शस्त्र नहीं थे और न ही धन थी, जिसके कारण ये विद्रोह जो थी असफल हुई। जो भी शस्त्र थे वो पुराने और नकारा हो चुके थे, यानी उसमें कोई भी धार नहीं थी। वो अंग्रेजों के संवेदनशील और आधुनिक शस्त्रों का सामना नहीं कर सकते थे। बागियों की संगठन व्यवस्था भी अच्छी नहीं थी, और देश के विभिन्न भागों में भड़कने वाले विद्रोह में परंपरा कोई समन्वय नहीं था। प्रायः सिपाही और नियंत्रित रूप से व्यवहार कर रहे थे। यानी देखा जाए तो ये एक रूपता नहीं दिखा रहे थे। तो वही हुआ बाबर वाली और हुमायूं वाली स्टोरी, जो बाबर की स्टोरी जो आई थी। बाबर जब यहाँ पर लड़ने आया था तो कहते चंद सेनाओं लेके ही आया था, और इंडिया में सेना बहुत लाखों में थी, तो कहते हजारों सेना ने जो है लाखों सेना को जो है हरा दिया। तो वही हालत इस समय थी, क्योंकि इनके पास लोगों की संख्या अधिक तो थी, लेकिन उनके पास सुव्यवस्थित तरीके नहीं थे। कहते एक लीडरशिप नहीं थी, जिसके कारण 1857 क्रांति जो है बहुत आसानी से जो है ख़त्म हो गई। प्राय सिपाही नियंत्रित रूप से व्यवहार कर रहे थे, और दूसरी ओर टेलीग्राफिक सिस्टम और डाक संचार के अंग्रेजों को अपनी कार्रवाई गति तेज करने में सहायता की, क्योंकि जो भी विद्रोह होता था उसकी खबर एजेंसी को बहुत ही पहले मिल जाती थी और बहुत समय पे मिल जाती थी, जिसके कारण वो जो है बहुत ही फास्ट तरीके से जो है कार्रवाई जो है विद्रोहियों के खिलाफ कर सकते थे। यानी देखा जाए तो टेलीग्राफिंग सिस्टम और डाक संचार के माध्यम उस समय इस आंदोलन को कुचलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई। अंग्रेजों के जो है समुद्र की दक्षता और फलस्वरूप उन्हें इंग्लैंड के सामरिक सहायता उन्हें आसानी से उपलब्ध थी, और उन्हें इस विद्रोह का बड़ी ही बेरहमी से दमन किया।